Now we take the next question on area under the curve. We have to find the area bounded by or enclosed by y is equal to greatest integer function x and y is equal to fractional function x. ठीक है, तो let's draw a rough sketch of the curves. These are our axes. This is y axis, this is x axis. So first we'll draw the greatest integer function. So this would be something of this sort. ये greatest integer ऐसे बनेगा, something of this sort, and this would be this ऐसे. So this is open, this is open, this is open, and next the fractional function. The fractional function would be, obviously this point is 1, this point is 2, this point is 3, this is -1, this is -2, this is -3. जो fractional function x है वो क्या होगा? That would be 1 like this and so on. This would be fractional function x. We can write this as जो हमने green से बनाया, that is fractional, or rather we can write this. So this is y is equal to fractional function x, and this is y is equal to greatest of x. Now the area enclosed between the two is obviously this region. This is the region that is enclosed. Now obviously this is what? This is a parallelogram. Now since it is a parallelogram, therefore the required area would be what? Base into height. Now base इसकी क्या है? Base, this point is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 0, this is -1, this is -2, this is -3. तो base area तो base की लेंथ तो 1 हो गई. And what is the height? ये height ये है, this is 1. This should be, ये जो है हमारा ये 1 है, तो height is 1, तो height is also 1. So therefore the area would be 1 square units. And obviously there is no need of finding the integral method से निकालने की हमें ज़रूरत नहीं, because ये obviously आराम से ये पैरेललोग्राम से ही हो जाएगा. If you want तो we can find कि area under this curve, अब इस ये जो ब्रांच है और y is equal to fractional x, इसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to x. If we integrate from 0 to, let's say this point is 1, 0 to 1 x dx, तो क्या आएगा? x square by 2. From 0 to 1, when we put 1 क्या आएगा? half square units. एंड ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल है, तो हाफ का डबल हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया वुड बी 2 times ऑफ दिस वुड बी 1 square units. तो अगर हम इंटीग्रल यूज़ करना चाहें तो इंटीग्रेशन से भी आ सकता है, बट एक्चुअली वी डोंट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. हमें स्ट्रेट अवे पैरेललोग्राम के एरिया से ही मिल जाएगा ये. Therefore the required area is 1 square units. Therefore your correct answer is B. Now let's take the next example. The area bounded by the curves y is equal to greatest integer of x square upon 64 plus 2 and the line y is equal to x minus 1 and x is equal to 0 above x axis is. X is equal to 0 तो y axis हो गया. तो बेसिकली y axis और x axis के बाउंड करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा वो हमें बताना है. लेट्स ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ इट. तो सबसे पहले वी कैन ड्रॉ
दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो पहले अगर हम इस लाइन को देखें कैसे होगी, लाइन के लिए तो वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार x को 0 रख दें तो y -1 आएगा, और एक बार y को 0 रख दें तो x 1 आएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट 0 -1 आए और यहाँ से कोऑर्डिनेट्स 1 0 आए। तो 1 0 वुड बी समवेयर हेयर एंड 0 -1 वुड बी समवेयर हेयर। दिस इज 0 -1 and this is 1, 0. We can draw the line passing through these 2 points. This would be the line. This would be the line y is equal to x minus 1. Now, if we look at this part of the function x square by 64 plus 2, so we know that greatest integer function में अगर this is a property that if we have x plus I, so it can be written as greatest of x plus I. Integral part जो होता है that can come out of the greatest integer function. So I can write this as x square by 64 plus 2. Now if you look closely, y is equal to x square upon 64 plus 2 जो लिखा है, इसमें ये जो पोर्शन है, जब x, when x lies between -8 to +8, x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 64। तो x स्क्वायर बाय 64 की वैल्यू कहाँ होगी, x स्क्वायर बाय 64 लेस देन 1। तो यानी अगर x स्क्वायर बाय 64 की वैल्यू 0 से 1 रहेगी, देयरफॉर ग्रेटेस्ट ऑफ x स्क्वायर बाय 64 की वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी 0। In fact, we should not include 8. 8 include नहीं कर रहे, should not include 8। तो ये हो जाएगा less than 64 and less than 1। तो 0 से 1 में अगर x स्क्वायर बाय 64 की वैल्यू है, जब x -8 से +8 है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी when x lies between -8 and 8। तो ठीक है, तो दिस कैन बी विजुलाइज एज कि -8 हमारा कहीं यहाँ होगा एंड लेट्स से 8 हमारा कहीं यहाँ होगा। तो इस इंटरवल में जो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर बाय 64 प्लस 2 है, वो हमें आउटपुट क्या देगा, 2 ही देगा। तो दिस वुड बी, लेट्स से दिस इज द पॉइंट 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें 2 ही आउटपुट मिलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, दैट डिपेंड्स, लेकिन इस इंटरवल में तो हमारा 2 ही होगा, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अबव एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। तो हमारे को तो बस वो एरिया देखना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है बिटवीन दीज 2 कर्व्स और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हो। तो वो एरिया तो हमारा फिर बस हम ये पॉइंट और निकाल लें कि ये कहाँ पर है। तो जब ऑब्वियसली ये लाइन को इंटरसेक्ट कब करेगा, जब y इज इक्वल टू 2 होगा, दिस वुड बी y इज इक्वल टू 2। तो जब y इज इक्वल टू 2 होगा तो x -1 कहाँ कट करेगा, y इज इक्वल टू x -1 विल कट y इक्वल्स टू 2 एट, जब y को 2 रखेंगे तो 2 इक्वल्स टू x -1, देयरफॉर x क्या आ गया, 3। यानी ये किस पॉइंट पे कट करेगा, जब x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 3 है। तो यानी ये पॉइंट क्या आएगा, 3, 2। तो ऑब्वियसली अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। नाउ तो ये रिक्वायर्ड एरिया तो हम चाहे तो इंटीग्रल से निकाल सकते हैं, चाहे तो हमें ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दिख रहा है। तो इफ वी कैन क्विकली फाइंड आउट, required area would be half sum of parallel sides into height। तो half sum of parallel sides into height क्या हो गया, half what are the parallel sides,
पैरेलल साइड्स आपके हैं, लेट्स से वी ड्रॉ, दिस इज 0, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो पैरेलल साइड्स क्या हो गए, OA एंड CV, एंड द हाइट इज ऑब्वियसली OC. तो हाफ OA कितना है, OA इज 1, CB कितना है, CB इज लेंथ 3 जो एक्स कोऑर्डिनेट है इधर का, एंड OC इज 2. तो व्हाट डू वी गेट, 4/2 into 2, तो वी गेट 4 स्क्वायर यूनिट्स. तो आंसर आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स है. बट इफ यू वांट टू एक्चुअली यूज इंटीग्रेशन, तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, ये पूरा एरिया विल बी एरिया, ये पूरा एरिया किस कर्व के नीचे आ रहा है, y इज इक्वल टू 2 के नीचे. उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एरिया अंडर दिस लाइन, तो ये एरिया आ जाएगा. तो व्हाट वी कैन राइट इज, वी कैन यूज इंटीग्रेशन. तो देन रिक्वायर्ड एरिया वुड बी इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 3 तक, 0 से 3 तक y dx, और y क्या है, y इज इक्वल टू 2 हो रहा है, तो 2 dx माइनस एरिया अंडर द लाइन. और लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x एक्सिस पे 1 से लेके लाइन के नीचे एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 3, 1 से लेके 3 तक, एंड y dx, y क्या है, x माइनस 1 है लाइन dx. तो वी कैन यूज इंटीग्रेशन एज वेल. तो क्या होगा, 2 बाहर, 1 का x फ्रॉम 0 से 3 माइनस x का हो गया x²/2 माइनस x इंटीग्रल, एंड फ्रॉम 1 से 3. तो व्हाट डू वी गेट, ट्वाइस 3 माइनस 0 माइनस, हेयर वी गेट 3 3 ज़ा 9/2 माइनस 3, एंड जब 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1. तो वी कैन सॉल्व दिस, 3 to the 6 माइनस दिस वुड बी एलसीएम, तो 9 माइनस 6 3/2, एंड दिस वुड बी माइनस हाफ, और ये हो जाएगा प्लस हाफ. तो कितना हो गया, 6 माइनस 4/2 विच इज 2. तो अगेन योर आंसर इज व्हाट, 4 स्क्वायर यूनिट्स. तो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल, यू कैन स्ट्रेट अवे फाइंड आउट बाय दिस मेथड, एंड इफ यू आर लुकिंग एट स्कूल लेवल, तो यू कैन फाइंड आउट बाय एक्चुअल इंटीग्रेशन. आंसर सेम ही आएगा. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4 square units. Now let's take the next question. Find the area bounded by the x-axis, part of the curve y is equal to 1 plus 8 by x square, and the ordinate at x is equal to 2 and x is equal to 4. If the ordinate x is equal to a divides the area into 2 equal parts, find a. ठीक है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही कर्व दिया है हमको, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ रफ स्केच ऑफ इट. हालांकि वी लुक क्लोजली, द कर्व इज पॉजिटिव थ्रू आउट, दैट इज, अगर हम इस कर्व को देखें y इज इक्वल टू 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव है थ्रू आउट फॉर ऑल x. बस x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है इसको, 0. दैट इज वी कैन राइट x बिलोंग्स टू ऑल रियल x एक्सेप्ट 0, 0 पे डिफाइंड नहीं है. नाउ इफ वी लुक क्लोजली, as x tends to infinity, y would tend to 1, and similarly when x tends to minus infinity, then 2y tends to 1, and when x tends to 0, y tends to infinity. और 0 पॉजिटिव हो चाहे 0 नेगेटिव हो, y would tend to infinity. तो ठीक है, ठीक है. तो ऑब्वियसली एंड दिस कर्व, पहला पॉइंट तो ये हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब पूरा कर्व इज अबव x एक्सिस. तीसरा पॉइंट, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. क्यों, क्योंकि
जब हम x की जगह -x रखेंगे कर्व में 1 + 8 अपॉन -x का होल स्क्वायर, वी गेट बैक द ओरिजिनल कर्व। ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो गया। तो इफ वी ड्रॉ हाफ ऑफ द कर्व, अगर खाली एक साइड ऑफ द एक्सिस का हम कर्व बना लें, उसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में ले लें तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जो एक पार्ट होगा y एक्सिस के एक तरफ, वही दूसरा पार्ट होगा उसका y एक्सिस। तो 0 पे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है और इन्फिनिटी पे ये 1 पे जा रहा है। तो लेट्स से दिस इज योर लाइन, दिस इज योर लाइन y = 1। ये कर्व कैसे होगा अप्रॉक्स, अगर हम वो देखें, दिस शुड बी लाइक दिस, कि जब x टेंड्स टू 0 की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 1 की तरफ जा रहा है। एंड सिमिलर ग्राफ इसका लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। लेट्स ड्रॉ दिस अगेन। बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट सेम होंगे। दिस वुड बी ऐसे ही ग्राफ होगा, लेफ्ट और राइट सेम होगा। वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, द x एक्सिस बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स x = 2 and x = 4। x = 2 लेट्स से यहाँ आ जाएगा, and x = 4 ये हो जाएगी लाइन। तो दिस इज x = 2 and दिस इज x = 4। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, would be this area, this is the bounded area। So for this the required area simply क्या हो जाएगा, from 2 to 4 y dx। तो this would give you 2 to 4 1 + 8 by x² dx। तो ऑन इंटीग्रल 1 विल गिव यू x, और ये हो जाएगा 8 × x⁻², तो ये हो जाएगा -8 अपॉन x फ्रॉम 2 to 4। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, तो आएगा 4 - 8/4 -2 - 8/2। तो दिस गिव्स यू 4 1s are 4 2s are 2 1s are 2 4s are, दिस इज 2 minus दिस वुड बी -2। तो कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अब ये कह रहा है कि दिस एरिया इज बीइंग डिवाइडेड बाय अ लाइन, लेट्स से दिस इज द लाइन, लेट्स से दिस लाइन इज x = a, और ये लाइन इस एरिया को हाफ हाफ में कर रही है। तो इट सिंपली मीन्स कि इफ वी राइट द एरिया बिटवीन 2 to a, x = 2 से x = a के बीच में अगर हम एरिया निकालें 8/x² dx, तो ये एरिया क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ द एरिया आया है, दैट इज 2, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज इंटीग्रेट दिस। तो क्या होगा, x - 8/x from 2 to a should be 2। So this gives you a - 8 upon a minus 2 - 8/2 should be equal to 2। So this gives you a - 8/a minus, and this is -2, तो a + 2 हो गया, equals to 0, equals to 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, and we have a - 8/a equals to 0, and which implies a² - 8 equals to 0। therefore a क्या होगा, ±2√2। बट जो a है that is lying on the positive side of the x axis, 2 और 4 के बीच में है, तो we'll take the positive sign। a की वैल्यू क्या आ गई, 2√2। therefore the second part of the question has the answer a equals to 2, and the area of the enclosed under the enclosed part would be 4। The next question is
Find the area of the region bounded by the x-axis and the curves defined by y is equal to tan x between minus pi by 3 and plus pi by 3 and y is equal to cot x in the interval pi by 6 to 3 pi by 2. तो ऑब्वियसली पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि दो कर्व्स हैं, लेट्स सी कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. तो tan x is equal to cot x. So this can be written as tan x is equal to 1 upon tan x. It gives you tan square x is equal to 1. Therefore tan x is equal to plus minus 1. तो if tan x equals to 1 होगा तो जनरल सोल्यूशन वुड बी n पाई प्लस पाई बाई 4. और अगर tan x माइनस 1 है तो देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन वुड बी n पाई माइनस पाई बाई 4. तो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? व्हेन n को 0 रखें तो पाई बाई 4 या माइनस पाई बाई 4. माइनस बाई 4 नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि दोनों इंटरवल्स हमारे जो दिए हैं पॉजिटिव है. लेट्स से n को 1 ले लें तो दिस वुड बी 5 पाई बाई 4 एंड दिस वुड बी 3 पाई बाई 4. तो 3 पाई बाई 4 हमारा आ सकता है. 5 पाई बाई 4 इज आउट ऑफ रेंज. ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ द एक्सिस. Let's say these are your axis, the y axis and the x axis. तो जो tan x का ग्राफ होगा that we have to make between minus pi by 3 and plus pi by 3. Would be something of this sort. So this is the line. This is your line. ये pi by 2 पॉइंट है, ये minus pi by 2, and we have to actually consider the graph from minus pi by 3 to plus pi by 3. एक्चुअली हमें सिर्फ ग्राफ का कौन सा हिस्सा चाहिए? जो माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 तक. ठीक है, नाउ ये तो tan x का हो गया. नाउ वी टॉक ऑफ cot x. तो cot x का क्या बनता है? cot x का ग्राफ is something of this sort. ये कुछ ऐसे आएगी. दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली ये पाई है. तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे? दे विल मीट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? पाई बाय 4. तो जो एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स एंड द एक्स एक्सिस है वो क्या होगा? बट हमको जो cot x का ग्राफ लेना है वो कहाँ से लेना है? फ्रॉम पाई बाय 6. पाई बाय 6 यहाँ कहीं होगा. दिस इज पाई बाय 6. तो सिर्फ हमको कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमारा पाई बाय 6 होगा. तो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. यहाँ से हमें ग्राफ लेना है cot x का और कहाँ तक जाना है? 3 पाई बाई 2 तक. तो 3 पाई बाई 2 तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो दूसरा ग्राफ है वो पाई बाई 3 तक ही जा रहा है. तो हम बस उतना ही पोर्शन ले लें. तो दिस वुड बी, ये आपका ग्राफ हम लोग वी कैन इंक्लूड दिस cot x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इज ऑफ नो यूज. तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है? वुड बी दिस. पाई बाई 3 तक ही जाना है हमको. तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा दिस टाइम? रिक्वायर्ड एरिया वुड बी पाई बाई 6 से
π/4 जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके नीचे कौन सा कर्व, उसके नीचे जो एरिया रहा है वो किसके कर्व के नीचे आ रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू tan x। और π/4 से π/3 जो एरिया आ रहा है वो किसके नीचे आ रहा है, वो y इज इक्वल टू cot x कर्व के नीचे आ रहा है। तो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम π/6 टू π/4 tan x dx, y dx होगा तो y इज tan x प्लस π/4 से π/3 y dx मतलब cot x dx। तो दिस शुड बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो tan x का इंटीग्रल इज माइनस log cos x फ्रॉम π/6 से π/4 प्लस cot x का क्या होगा, log sin x फ्रॉम π/4 से π/3। तो दिस वुड गिव यू माइनस log cos π/4 minus of minus log cos π/6, and then we'll have log sin π/3 minus log sin π/4. So this would be minus log 1/√2 minus and minus plus log cos π/6 is 30 degree, therefore √3/2. Then we have log sin π/3 which is √3/2, and we have minus log sin π/4 which is 1/√2. So we have twice of log √3/2 minus log 1/√2. So this on simplification will give you twice log √3/2 upon 1 into √2. So this and this goes, and we have twice log √3/2, and this can further be simplified as twice into log 3/2 whole raised to power half, which is same as 2 into half log 3/2, cancel हो गया। तो therefore the required area is log 3/2 square u. So the area bounded by the curves y is equal to tan x and cot x and the x-axis and between the required interval is log 3/2. Now we take the next question, and we have to sketch the region bounded by the curves y is equal to √5 minus x square and y is equal to mod x minus 1 and find its area. तो y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग ने कैसे डिसाइड किया था, कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आ गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस √5। तो इसका कर्व हम लोग बना लेंगे, एंड ये क्या होगा, ये सर्कल होगा, and this is 0 0 and this is √5, 0 and minus √5, 0। तो जब रूट फंक्शन हम लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, तो सिर्फ अबव एक्स एक्सिस वाला रीजन ले लेते हैं। दिस विल बी द पोर्शन जो हम लोग कंसीडर करेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। सिमिलरली y इज इक्वल टू mod x minus 1, दिस इज क्वाइट ईजी। जहाँ पे ये अंदर वाला वैल्यू x माइनस 1 को 0 करिए, जहाँ पे ये वैल्यू x की आती है उस वैल्यू पे v बना दीजिए। दिस वुड बी y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 का पूरा। नाउ इफ x इज, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, x माइनस 1 विल बी ओपनड एज x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस टाइम्स x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0। इसका इम्प्लीकेशन हुआ अगर x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 होगा, और अगर x 1 से छोटा है तो माइनस x माइनस 1 खुलेगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये तो x की वैल्यू 1 से जब बड़ी है तो है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई x माइनस 1, और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या हो गई माइनस x माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू जब 1 से कम है उस पार्ट में आ रहा है। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया
अब हम इसको एक्चुअली ड्रॉ करेंगे. तो दिस वुड बी, we'll draw the x axis and y axis. तो ये हो गया y axis या x axis, and we'll draw a circle and remove the bottom part. We'll remove the bottom part. और x -1 का mod would be, ये पॉइंट ले लिया, तो दिस वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एंड दिस वुड बी 1, ये ओरिजिन हो गया, एंड दिस वुड बी -√5,0, एंड दिस वुड बी √5,0. और अगर नहीं समझ में आया तो वी कैन डू दिस कर्व कट्स x एक्सिस एट y0. y को 0 करेंगे तो क्या आएगा, 5 - x² इज 0, तो x square will be 5, तो x क्या आ जाएगा, ±√5, एंड देयरफॉर वी गेट दिस पॉइंट. और ये पॉइंट क्या होगा, दिस कर्व कट्स y एक्सिस एट x0, ये क्या हो जाएगा, 0, तो ऑब्वियसली द बाउंडेड एरिया वुड बी दिस एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. दिस इज द कर्व वी आर लुकिंग फॉर. अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. तो फॉर दैट वील हैव टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. तो इस ब्रांच की इक्वेशन क्या थी, y = x - 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, y = -x - 1, जब x की वैल्यू 1 से कम है. तो हम सॉल्व कर लेते हैं. y = दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y = √5 - x² को एक बार किससे सॉल्व कर लें, y = x - 1 से, और एक बार 5 - x² को y = -x - 1 से कर लें. तो क्या आ जाएगा, 5 - x² = x - 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 - x² = x² - 2x + 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² - 2x - 4 = 0, विच गिव्स यू x² - x - 2 is 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, x - 2 and x + 1 = 0. Therefore it gives you x = 2 and x = -1. इससे करेंगे, इससे भी सॉल्व कर लेते हैं. 5 - x² √ -x - 1. जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए एग्जैक्टली वही इक्वेशन आ जाएगी जो पहले आई थी, x - 1 का होल स्क्वायर, द सेम इक्वेशन. तो इससे भी हमें वही सेम पॉइंट्स मिलेंगे. तो देयरफॉर आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर x = 2 एंड x = -1. तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट इज -1, 0 एंड दिस पॉइंट इज 2, 0. तो बस अब तो हम रिक्वायर्ड एरिया लिख लें. रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, व्हाट विल डू इज इंटीग्रेट ये जो पूरा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया आ रहा है. विल फाइंड दैट एरिया. वो एरिया क्या होगा, फ्रॉम -1 से 2 एरिया अंडर दिस कर्व. और ये कर्व क्या है, y dx, यानी y इज 5 - x² dx. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया अंडर, रादर एरिया अंडर जो ये वाला कर्व है, मतलब कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, -1 से 2 के बीच में जो मॉड x - 1 के नीचे है. बस दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. अब इसको सॉल्व कर देंगे. तो इस वाले पोर्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x/2 √5 - x² + a² 2 sin इनवर्स x/a. a क्या है, √5 है, एंड दिस इज फ्रॉम दिस इज 2 एंड दिस इज -1.
अब इस पे आते हैं सेकंड पार्ट. अब मॉड फंक्शन तो इंटरवल के हिसाब से खुलता है, तो हम लोग ने क्या इसकी डेफिनेशन लिखी थी कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये x-1 खुलेगा, और अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो ये -x-1 पे खुलेगा. तो हमारा इंटरवल -1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी -1 से 1 तक जब x की वैल्यू 1 से कम है तो दिस फंक्शन विल ओपन एज -(x-1) एंड प्लस जब 1 से 2 तक जाएंगे तो ये 1 से बड़ी होगी x की वैल्यू, तब ये क्या फंक्शन खुलेगा, x-1 dx. तो बस अब ये हैव टू सॉल्व दिस. तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2/2 एंड दिस वुड बी 5-4 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 माइनस -1/2 √5-1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स -1/√5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, दिस वुड बी -x + 1, तो इसका इंटीग्रल वुड बी -x² 2 प्लस x फ्रॉम -1 to 1 एंड प्लस इसका इंटीग्रल वुड बी x² 2 -x फ्रॉम 1 to 2. तो देयरफॉर लेट्स सॉल्व दिस. ये तो कट गया एंड √(1) is 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स √5 माइनस दिस वुड बी 4, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी +1 माइनस 5/2 एंड दिस वुड बी माइनस बाहर आएगा तो दिस वुड बी प्लस साइन इनवर्स 1/√5 एंड देन दिस वुड बी, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, एंड -1/2 प्लस 1 और माइनस रखेंगे तो -1/2 -1 प्लस जब यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/2 -2 माइनस 1/2 -1. तो दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू 1 + 1 2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 and this would be plus half, this would be -3/2 तो प्लस 3/2 हो जाएगा, प्लस दिस इज 2 तो कैंसिल हो गया, दिस टेंस टू 0 और ये हो गया -half तो ये हो गया +half. तो अल्टीमेटली दिस गिव्स यू 2 + 5/2 साइन इनवर्स 2/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 माइनस दिस गिव्स यू 2 + 3, दिस इज 5/2. तो क्या हो जाएगा आंसर, 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 and this would be 2 minus 5/2 is -1/2 square units. This is the area bounded by the curves y is equal to √5 minus x square and y equals to mod x minus 1. You can very well solve this. sin inverse x plus sin inverse y भी लगा के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो this can be further simplified as sin inverse 2/√5 plus sin inverse 1/√5 can be written as sin inverse x √1 minus y square plus 1/√5 √1 minus x square is 4/5. ये क्या हो जाएगा, sin inverse 2/√5 into this would be 5 minus 1 4 2/√5 plus 1/√5 and this would be 1/√5. ये हो गया sin inverse 4 plus 1 upon 5 and this is sin inverse 1 और sin inverse 1 क्या हो गया 5/2. तो सिंप्लीफाई कराना हुआ 5/2 into 5/2 minus half. This is 5 pi/4 minus half square units.
Now we take the next question.